Good evening, class. Uh, Yesterday we have completed our PAGRP protocol, and I hope that all of you have done practice with some practicals. And if you guys have any doubt with the practicals, so you guys can ask us. And if not, then we will continue with the new protocol, and that is OSPF. So, anyone of you have any doubt with PAGRP, so please ask. Okay, so I think all things are clear for all students. So let's continue with the new protocol. And the new protocol is OSPF. Let me first continue with this. Okay, so OSPF basically is an open shortest path first routing protocol. And this routing protocol is also known as link state routing protocol. We have discussed earlier that there are two types of protocol we have. The first one is distance vector algorithm, distance vector routing protocol, and the second one is link state routing protocols. So OSPF is a link state routing protocol. So here we will know that this OSPF is an open source routing protocol, means this routing protocol will work on every device. So, okay, now we will come on this point and we will start the OSPF. So, yes, we continue with the OSPF. So, it is open shortest path first. Okay, so it is a dynamic routing protocol, obviously. Second thing is it is a link state routing protocol. The next point is it is an open source routing protocol. The next is it is a classless routing protocol. It supports VLSN. It has AD value of 110. It's a default value. We can change it. Obviously, it's a default value and we can change it to yes.
Next is it maintain three table, or else we can say it maintains four tables. Okay, the tables are routing table for all default, for all best route, we all can say. Second is the neighbor table, which will contain the information about the neighbors of a particular router. The third is topology table, which will contain all the possible routes available or learned by receiving the routing update. And the next table is database table, or let me correct this. It is specifically we can say that it is a LSA database table. So there are four tables that are maintained by the OSPF. So the first is routing table. Definitely the information of best route will contain in routing table. Not all the routes can be listed in routing table. So for all the other routes, all the other possible routes, we will have another one table, the topology table, in which we will contain all the available route or all the available networks in the particular topology, and will that would receive or that would learn by the routing updates in the router. The next is a neighbor table. Neighbor table will maintain the information about the agencies and about the neighbors. And in the fourth table, we can say that it is LSA database table. That means OSPF has um a different method or a different way to send the routing updates. So OSPF advertise their status by using a link state advertisement. We all know that OSPF basically advertise their updates in the form of LSA, link state advertisement. Okay, and OSPF will send these LSA when a topology change happens. That means if there is a topology change occur in the network, so definitely the LSA will be flooded. LSA will only send to when the change happen, and definitely the LSA will only contain the information about the modification of the particular route, not the complete routing table. Remember this thing, I'm going to repeat the line that LSA will contain the only update, the only change that has done in their update. LSA will not contain the old routing table, the whole routing table as an update. The next point is LSA basically automatically refreshed after every 30 minutes. Means that LSA will automatically update, or will automatically, or we can say will periodically update after every 30 minutes. Okay, so definitely we can say that LSA will automatic refreshed after 30 minutes. Okay, LSA means updates will automatically. The database will automatically, the fourth table that we have, LSA database table, will automatically refresh after every 30 minutes. So refresh means definitely what we are saying about refresh. Refresh means
that all the routes will be multicasted, all the LSAs will be multicasted, or all the LSAs will be refreshed, will be resent in the whole topology. And we can say that OSPF has two multicast address. The first one is the 224.0.0.5, and this particular multicast address is used by all OSPF routers to send the bits and updates. Basically, we can say, and the second one is 224.0.0.6 is used by DR or BDR for sending the updates. So we got two lines. We have two multicast addresses and both have different functions. Both has different use. The first one is 224.0.0.5 is used by all OSPF routers to send the updates, and the second one is 224.0.0.6 that is used by DR or BDR. So DR and BDR are the routers actually, and these are the names that has been given to the routers according to their work. So we will discuss this DR, BDR, what is DR, BDR, and why we are using 224.0.0.6 for DR, BDR. But for till we have to know that 224.0.0.5 is basically used by all the OSPF routers to send the updates, and 224.0.0.6 basically used by DR and BDR to send the updates. The next is the protocol that is used by OSPF, or the algorithm basically that used by OSPF to determine the shortest path is Dijkstra shortest path first algorithm. OSPF used Dijkstra shortest path first algorithm to determine the best path or the shortest path. Okay. The next is that the shortest, the cost basically, like how we are going to decide that which one is the better path. So we have to use any parameter to calculate that. So OSPF will use the cost as the matrix, metric, and the cost is calculated by bandwidth. The cost is calculated by bandwidth of the link, or we can say interface. The next point is that OSPF
has no hop limit. Remember guys, OSPF has no hop limit. Okay, so okay, that's fine. OSPF has no hop limit. So these are basic information of OSPF, and obviously OSPF will also form neighborship with the routers that belong to the same area. Okay, and now we come to the point, so what do you mean by area? So first of all, I would like to ask from all of you that if any one of you have any doubt with these listed properties of OSPF, so you can ask, or else we will continue with the next. OSPF is a big protocol and has a big, we can say, properties as well. So if any one of you has doubt with it, so you can ask. Uh, no, actually, OSPF is a classless routing protocol. This line demonstrates that OSPF will support all the FLSM, CIDR, and VLSM. I have listed only one as, but before this, I stated a statement that classless routing protocol. So classless means यही हो गया कि FLSM और CIDR दोनों को सपोर्ट करेगा, VLSM के साथ साथ FLSM CIDR को भी सपोर्ट करेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपडेट्स जो जाती हैं वो LSA के तौर पे जाती हैं। LSA मीन्स लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। Every router in OSPF will build their own LSP, link state packets, and then those LSP will be forwarded to all the available topologies, or basically will be forwarded to the neighbor as well. Okay, now we come on some other parameters that should be discussed while we are using this. So OSPF has no hop limit, that's fine, that's okay. Next, we can say that OSPF remove the OSPF will remove the limits of distance vector algorithms. Okay, how it works? So obviously we can say that the first point that it has no hop limit, definitely. Second is it will not broadcast the updates. Okay, now anyone can say that the EIGRP will also not broadcast. It will reduce the update flooding with its own concept. Okay, so it simply reduce the update flooding. Basically क्या होता है ना कि एक टोपोलॉजी के अंदर एक राउटर के जो नेबर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. We will take a scenario on that and we will try to understand that what I'm
exactly trying to say. And here we have the concept of DR and VDR. So here we comes on the concept of DR and VDR. So definitely we will discuss this as well. First, we all have discussed about the neighbors. Okay, so we all know that the neighborship is formed in OSPF with their agencies. The neighborship is called the agency, and for that, for example, now if we have two routers, okay, we, let's say this one and this one, okay. So we have two routers. Now these two routers will form first neighborship, and after this do they will send the updates to the other to the further updates like the routing table and all. So first of all, they will form the neighborships, and for doing that, they must send an hello packet to each other. So obviously, हेलो पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा और हेलो पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए मेरे पास जो व्हाट आई कैन से मेरे पास जो आईपी एड्रेस है जो जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो कौन सा है दैट इज दिस वन 224.0.0. Okay, 224.0.0.5. On this, router will send the hello packet. After the completion of neighborship, router will share their routing information. Now, in OSPF, every router is known by their routing or router ID basically. Every router is known by their router ID. Now, I want to remove this content. So, any one of you has doubt, so please ask me on that. अभी मैं ये कंटेंट हटाने जा रहा हूँ तो अभी किसी को डाउट है तो वो पूछे नहीं तो फिर मैं इसको हटा रहा हूँ ओके नाउ like OSPF routers are known by their router ID. Okay, OSPF routers are known by their router ID definitely. So basically, router ID means we cannot say that मेरा router 1, router 2, router 3 है. I will prefer the router ID. Router ID क्या होती है? Router ID basically we can say that there are 3 points, 3 lines to demonstrate or to explain the router ID, and these 3 lines are like first point is highest address available on the router. The highest IP address available on the routers PXYSIC physical entity. पहला पॉइंट राउटर आईडी क्या होगा राउटर आईडी का आइडेंटिफिकेशन है जिसका इस्तेमाल ओवरस्क्रिप्ट में राउटर्स को एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है ये राउटर आईडी हर एक राउटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है राउटर आईडी कुड बी दी हाईएस्ट आईपी एड्रेस अवेलेबल ऑन राउटर फिजिकल इंटरफेस लेट्स से मेरे पास एक राउटर है जिसमें एक सीरियल इंटरफेस लगा हुआ है और एक फास्ट इथरनेट इंटरफेस लगा हुआ है उनमें से जिस इंटरफेस का आईपी एड्रेस बड़ा होगा एज अ न्यूमेरिक वैल्यू नॉट एज क्लास और नॉट एज लाइक द आईपी एड्रेस एज द न्यूमेरिक वैल्यू लेट्स से एक तो मेरा नेटवर्क है 10.0.0.1 और एक है
172.16.0.1. So obviously 172.16 वाला बड़ा होगा, so that is the highest IP address. And अगर if the second point, if or like the second point says that the highest IP address available on the loopback interface on the router will become the router ID. या तो प्रायोरिटी तो कुछ और कहती है, अभी हम लोग एक बार तीनों लाइंस को लिख लेते हैं. The third line says we can manually configure the router ID. Router ID क्या है? पहली चीज तो router ID, why do we need a router ID? Because in OSPF router ID is an identity of every router. So every OSPF router is identified by a unique router ID, and this router ID can be determined or can be set according to the three parameters, according to these three options. It could be one of them. Either या तो हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करें राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर करने का मतलब होगा कि मैनुअली उसमें एक ऐसा एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हाईएस्ट है या लोवेस्ट है. मैंने मैनुअली अगर कॉन्फ़िगर कर दिया तो इट डजंट मैटर व्हाट आईपी एड्रेस आई हैव. अच्छा, राउटर आईडी का फॉर्मेट कैसा होता है गाइस? राउटर आईडी हैज द फॉर्मेट ऑफ एन IPv4. The format of router ID is 4. Like the example, as the example we can see that 10.0.0.1 it could be the router, or 1.1.1.1 it could be the router, or 192.168.10.100 could be the router. So router ID basically has the format of IPv4 address, and that's the important. Now, either I can manually configure the router ID that will have the highest priority. Okay, if I manually configure something for my router, that will be on the higher priority. Doesn't matter what is the default value, doesn't matter. If I set it by my own, if I set it by manually, that would be the router ID. Definitely. Else, the highest IP address on the loopback interface of the router. Router can have some loopback interface. I'm not talking about loopback IP addresses. I'm talking about loopback interface. These loopback interface are the virtual interface that available on the router itself. Routers पर available होते हैं virtual interface. I'm not talking about virtual IP addresses. और virtual IP addresses के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो हमें याद आता है सर 127.0.0.0 वाला रेंज. So that range is known as virtual IP. Loopback IP address. Okay, I'm talking about loopback interface. So interface is totally different from the IP address. Loopback interface एक virtual interface होता है जो कि मेरे राउटर पर अवेलेबल होता है, जिसका इस्तेमाल मेरे राउटर को पिंग करने के लिए किया जाता है. और OSPF के अंदर हम लोग उसे एज अ राउटर आईडी के तौर पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. Sometimes what we want, if we don't have any other network, so we can use the loopback interface. मेरे पास for example अभी इंटरफेस नहीं अवेलेबल हो गया, मेरे राउटर पे इंटरफेस खत्म हो गया, टोपोलॉजी बड़ी है, मैंने फास्ट इथरनेट पे ले लिए, सीरियल केबल्स पे ले लिए, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी इंटरफेस टू ऐड एनी लोकल नेटवर्क. सो हम लूपबैक इंटरफेस पे ऐड करके उससे हमारा काम कर सकते हैं. अभी हम समझेंगे वो कैसे, बट रिमेंबर दिस लूपबैक इंटरफेस एक फिजिकल इंटरफेस की तरह ही होते हैं, बट यस these interface are virtual interface. इन पे कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही करनी होती है, सारे काम वैसे ही करने होते हैं. लूपबैक इंटरफेस की बात करें तो पहला पॉइंट तो क्या है सर, ये वर्चुअल इंटरफेस है.
दूसरा पॉइंट कहता है सर, it will never goes down as physical. डेफिनेट वर्चुअल है तो फिजिकल की तरह डाउन नहीं होता है। ये डाउन तभी होगा जब राउटर डाउन होगा, राउटर बंद होने पर ही ये बंद होगा। राउटर जैसे ही रिस्टार्ट होगा ये भी अपने आप ऑन हो जाएगा। वी डू नॉट गो ऑन द इंटरफेस एंड से शट नॉट शट, इट विल ऑटोमेटिकली ऑन स्टे। loopback interface. How many loopback interface we can configure? We can configure loopback interface. Approx. That means we have a plenty range of loopback interface that can be configured on the router. Okay, so definitely this is a range we can say. Uh, that no, we cannot. So loopback interface, we got the idea about the loopback interface. What is loopback interface and what is the use? So definitely we must remember this thing. While we are we are trying to determine the router ID. So the priority is first manual, then the highest, loopback address, then the highest physical ID. तो दिस इज द प्रायोरिटी लेवल। अगर मेरे राउटर में मैंने लूपबैक इंटरफेस का इस्तेमाल करके राउटर आईडी सेट कर दी, वहां पर मैंने मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर दिया। सो मैनुअल जो कॉन्फ़िगर की है वो एज अ राउटर आईडी सेट होगी। अब बात करते हैं कि जैसे एजीआरपी हर 5 सेकंड के बाद अपना एक हेलो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा था, ताकि ये बता रहे कि हमारा नेबरशिप कंटिन्यू है कि नहीं है, राउटर से अपडेट्स मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ओएसपीएफ विल आल्सो सेंड हेलो पैकेट्स आफ्टर एवरी 10 सेकंड। एंड ये 10 सेकंड्स का जो काम होता है ये होता है पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस का, लाइक ओवरस्क्रिप्ट टू ओवरस्क्रिप्ट, पॉइंट टू पॉइंट। एंड देयर आर सम अदर इंटरफेस एज वेल, पॉइंट टू मल्टीपल, जिसका इस्तेमाल हम लोग वन कनेक्टिविटी में करते हैं, फ्रेम रिले एंड ऑल। तो वहां पर हमारे पास जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 30 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि राउटर ओएसपीएफ में भी, ओएसपीएफ राउटर सेंड hello packet after every 10 seconds. We can change, but by default after every 10 seconds। और डेड इंटरवल यहाँ पर भी होता है, डेड इंटरवल यहाँ पर भी होता है, एंड डेड इंटरवल यहाँ पर होता है 4 गुना। अगर किसी राउटर से मेरे हेलो पैकेट मुझे 40 सेकंड तक रिसीव नहीं होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो नेटवर्क है, मैं मेरा जो इंटरफेस है, उस नेबर को मैं क्या अनाउंस कर दूंगा कि सर ये मेरा जो नेबर है, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन भेज ही नहीं है, ना तो मेरे हेलो पैकेट्स को मुझे जवाब देगा, ना ही तो वो हेलो पैकेट्स मेरे पास फॉरवर्ड हो गया। इसका मतलब कि इंटरफेस मेरा डाउन है, मेरी नेबरशिप को डाउन कर दिया। सो ये ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि अनवांटेड फ्लड ना हो। अगर ऑब्वियसली कन्वर्जेंस टाइम पर हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास नेटवर्क में अनवांटेड ट्रैफिक को कंट्रोल करने में होता है। अगर कन्वर्जेंस टाइम पर हो गया तो वो नेटवर्क के डाउन होने की वजह से वहां पर अनवांटेड ट्रैफिक नहीं बना रहेगा। अगर मुझे पता चल जाता है टाइम पर, तो अगर मुझे
नई इंफॉर्मेशन भेजनी है, नेटवर्क डाउन है, एक नया नेटवर्क ऐड हो गया है, तो अगर नेटवर्क डाउन है उस केस में अगर मैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे कंटिन्यूसली पैकेट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो वो पैकेट्स मेरे किसी काम के नहीं है, तो वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं। और जब हमें पता है कि वो ट्रैफिक को जो जा रहा है वो अनवांटेड है, मतलब ही नहीं है उसके जाने का, क्योंकि इंटरफेस है ही पर्टिकुलर नेटवर्क ही नहीं है, so that means we are like we have the situation in which we are like wasting the AP address and we are generating unwanted flood in my car. So to remove this, we have to know about the neighbor, whether the neighborship is working properly or not, whether the router is alive or not. So for that, the routers will send the keep alive messages, and these messages has the limit of after every 10 seconds, and डेड इंटरवल इनका जो होता है वो 4 गुना होता है। डेड इंटरवल का मतलब मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 4 पैकेट्स नहीं पहुँचते हैं, then I will consider that particular router as down for नेगोशिएट में वहाँ पर डाउन करता हूँ। तो ये काम यहाँ पर हमारे पास होता है। इंटरवल को हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, now we will come on the next point। जब नेबरशिप हमने कहा कि सर नेबरशिप बना लेते हैं, नेबरशिप बनने के लिए हमने हेलो पैकेट भी फॉरवर्ड किया, सो देयर आर सम पैरामीटर्स दैट मस्ट बी फॉलो, दैट मस्ट बी मैच। अगर मैच होंगे तभी नेबरशिप बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर नेबरशिप बनानी है किन्हीं दो राउटर्स के बीच में, तो दीज टू राउटर्स मस्ट satisfy or must have the same parameters। और वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं? पहली बात तो ध्यान रखिएगा भाई, ओवरस्पीएस में जब हॉप लिमिट नहीं होती है तो एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है कि टोपोलॉजी की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए हमने टोपोलॉजी को बेटर मैनेजमेंट करने के लिए, बेटर हैंडल करने के लिए ओवरस्पीएस में एरिया वाइज काम होता है। ओवरस्पीएस में हम नेटवर्क्स को एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो ऐसा हमने पहले भी मैंने लाइन स्टेटमेंट कहा, वो स्टेटमेंट ये है कि कोई दो राउटर आपस में नेबरशिप बनाते हैं, अगर वो दोनों राउटर सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो राउटर सेम एरिया से बिलोंग करते हैं तभी वो नेबरशिप बनाएंगे, अदरवाइज वो नेबरशिप नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पर हम देखें कि हम कह सकते हैं the parameter basically for neighborship is, पहली चीज तो सर एरिया आईडी। एरिया आईडी मतलब हम कहें कि सर एरिया 1, दो राउटर दोनों एरिया 1 में है, मतलब हाँ सर नेबरशिप बन सकती है। दूसरा एरिया, which type of area, कुछ टाइप होते हैं एरियाज की, हमने बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्टब कह दीजिए, MFSA कह दीजिए, और भी होते हैं, टोटल स्टब, नॉन स्टब, टोटल नॉन स्टब। तो हम कह सकते हैं कि सर ये कुछ टाइप ऑफ एरियाज हैं। तो ऐसा है कि एरिया टाइप कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड इज सबनेट मास्क। अगेन सबनेट मास्क का मतलब यहाँ पर वही है, the same concept that we were using in EIGRP about the subnet mask, that on both side of the router the interface must have same subnet mask. So here subnet mask is another parameter. Next is hello interval। नेबरशिप फॉर्म होने के लिए दोनों तरफ हेलो इंटरवल भी सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक इंटरफेस पे हमने बोला कि सर हेलो इंटरवल 15 सेकेंड कर दो, और एक इंटरफेस पे हमने बोला कि सर हेलो सेकेंड 30 कर दो। लेट से अभी मैं समझाऊंगा आपको
हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल सेम होने चाहिए, एंड तभी नेबरशिप बनेगी. देन दी नेक्स्ट पैरामीटर इज नेटवर्क टाइप. ओके, हम कह सकते हैं कि सर नेटवर्क टाइप में हमारे पास क्या आ गया. मेरा नेटवर्क हो सकता है सर पॉइंट टू पॉइंट टू, हो सकता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, हो सकता है मेरा मल्टीकास्ट नेटवर्क हो. सो नेटवर्क मेरे पास अलग अलग होते हैं. तो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, दोनों राउटर्स के बीच में जो कनेक्शन है नेटवर्क टाइप वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए. सेवंथ जो ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं वो है सर ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, authentication. So these are 7 parameters that must be, what I can say, that must be same, must be identical if I want to form a neighborship. Okay, if I want to form a neighborship, these parameters must be identical. So definitely that will work. Otherwise, that will not. Okay. नाउ वी कैन से दैट अभी पता चल गया सर नेबरशिप बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए. पैरामीटर फॉर नेबरशिप है. अच्छा, नेबरशिप बनने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है नेबर आईडी नेबर टेबल में. सो जैसा कि हमने एजीआरपी में भी देखा था, एज वी हैव सीन दिस इन एजीआरपी, नेबर टेबल विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द router. The next neighbor is a router ID, definitely, of the neighbor router. Second point is the current state of neighborship. हम समझेंगे करंट स्टेट क्या होती है, नेबरशिप की स्टेट होती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इंटरफेस. लोकल वाला इंटरफेस है उस पर्टिकुलर राउटर का जिससे हमने नेबरशिप बनाई है. और दी फोर्थ स्टेप है दी आईपी एड्रेस. ऑब्वियसली नेबर वाले पड़ोसी का आईपी एड्रेस, पड़ोसी के उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस जिससे हमने नेबरशिप बनाई है. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास. अब बात करते हैं कि सर नेबर की जो स्टेट होती है, नेबर हमने बात किया कि सर करंट स्टेट हमने बोला था. तो देखिए, हम ओएसपीएफ के बारे में मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं. इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर कोई दो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा फेमस है और कोई दो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा यूज में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी राउटिंग एज वेल, हम कहें तो वो है हमारे पास OSPF and BGP. OSPF is very important routing protocol. अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो नेबर जो होते हैं, एजेंसी जो बनती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बनती हैं. तो वहाँ पर कुछ स्टेट्स होती हैं, उन सभी स्टेट्स को फॉलो करते हुए द लास्ट में नेबरशिप कंप्लीट होती है. तो नेबरशिप को समझिए. नेबरशिप क्या होती है सर, मैंने दो नेटवर्क्स, दो राउटर्स के बीच में अगर मुझे टोपोलॉजी शेयर करनी है, अगर मुझे राउटिंग टेबल शेयर करनी है, राउटिंग अपडेट शेयर करनी है, तो बस पीएफ में उन दोनों राउटर्स के बीच में पहले नेबरशिप बननी चाहिए. और नेबरशिप जो बनती है वो स्टेप बाय स्टेप बनती है. तो उनकी जो स्टेट्स हैं, जो स्टेप्स कह दीजिए, उनकी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स देख लीजिए. हम लोग देखें कौन कौन सी हैं. तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 स्टेट्स हैं. वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं बाई वन बाई वन. थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आई एग्री विद दैट, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो अभी इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत कुछ है इसके अंदर बताने को. मतलब अभी सीसीएनए में भी काफ़ी कुछ हम लोग देखेंगे. अभी तो शुरू किया है हमने इसको. तो कहीं भी आपको डाउट आता है, कुछ भी पॉइंट आपको लगता है कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो आप प्लीज़ में आप पूछ लीजिए. क्योंकि सीसीएनए में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर राउटिंग का है तो वो ओएसपीएफ है. ठीक है. तो नेबर टेबल कंटेन दीज इंफॉर्मेशन. अभी इससे रिगार्डिंग आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछिए, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं इसमें.
Okay. So I hope that you all do not have any doubt with that. So ठीक है, हम बात करते हैं नेबर स्टेट के बारे में. नेबर स्टेट एंड ओवर स्टेट. सबसे पहली स्टेट डाउन स्टेट. अच्छा सर, डाउन स्टेट में क्या होगा? डाउन स्टेट अगर नेबर की दिखा रहा है, देखो ये हमें स्टेट दिखाता कहाँ है सर? ये स्टेट हमें देखने को मिलेगी जब हम लोग शो आईपी ओवर्स पीएफ नेबर करेंगे, यानी कि हम उसके जब नेबर टेबल को देखेंगे तो वहां पर उसकी स्टेट हमें शो कर रहा होगा, एंड दैट स्टेट विल गिव मी द आइडिया अबाउट द प्रोसेस एक्चुअली, कि कितनी प्रोसेस हो गई है नेबरशिप बनने में. क्योंकि अगर डाउन दिखा रहा दैट मीन्स अभी तक तो हेलो पैकेट्स भी नहीं गए वहां तक, कोई हेलो पैकेट नहीं गया. अगर डाउन स्टेट दिखाता है किसी भी नेबर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वहां पर अभी तक कोई हेलो पैकेट एक दूसरे को शेयर नहीं किया गया है. तो इसके बाद जो सेकंड आती है, भाई अगर डाउन स्टेट आप कहीं भी देखते हैं नेबर की, तो वो समझ जाइएगा वहां पर अभी तक कोई कन्वर्जेशन शुरू ही नहीं हुआ है. सेकंड आती है इनिट. ठीक है, इनिट स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर हेलो पैकेट फॉरवर्ड किए जाते हैं नेबर्स के लिए. हेलो पैकेट्स नेबर्स को भेजे जाते हैं, पड़ोसी राउटर्स को हमने भेजा और पड़ोसी राउटर ने उसे सुना, बट अभी तक उसने उसका जवाब नहीं दिया. रिमेम्बर, ऐसा चलता है कि जैसे मेरा एक राउटर है और दूसरा राउटर मेरे पास है, तो मेरे को दोनों के बीच नेबरशिप बना है. डाउन स्टेट कहता है कि सर दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, कोई मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं हुए अभी तक, सब कुछ नल है, कहीं कुछ नहीं हुआ. ओके, नो प्रॉब्लम. देन वी कम टू इनिट स्टेट. तो इनिट स्टेट कहता है सर अभी तक ना नेबर ने हमारी हेलो पैकेट को सुन लिया, मतलब हमने हेलो पैकेट फॉरवर्ड किया, नेबर विल रिसीव द हेलो पैकेट, बट स्टिल नेबर ने अभी तक वहां से इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है, वहां से मेरे पास हेलो पैकेट मेरे पास नहीं आया है. तो जो थर्ड स्टेज जो है उसे हम कहते हैं टू वे. टू वे स्टेट हमारे लिए कैसी होती है सर? यहाँ पर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है. बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि जैसा हेलो पैकेट मैंने वहां पे फॉरवर्ड किया, नेबर ने मेरी बात सुनी, मेरा हेलो पैकेट सुना, और नेबर ने अपने हेलो पैकेट्स को अपनी इंफॉर्मेशन डालते हुए आगे भी फॉरवर्ड किया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन में टू वे कब कंसिडर किया जाता है? जब राउटर अपनी राउटर आईडी कहाँ देखे? नेबर के हेलो पैकेट में. मतलब कहने का ऐसा मान लीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर टू वे स्टेट है क्या है? तो टू वे स्टेट में बेसिकली होता क्या है कि मैंने हेलो पैकेट फॉरवर्ड किया मेरे राउटर को, पड़ोसी राउटर ने उस हेलो पैकेट को सुना, और उसके बाद अब ऑब्वियसली मेरे हेलो पैकेट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया था कि हेलो पैकेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रही होंगी जो वो लेके जाने वाले हैं, और या फिर जो सेम होनी चाहिए. तो हमने वहाँ पे देखा था राउटर आईडी भी एक इंफॉर्मेशन थी. तो राउटर आईडी के बारे में हम बात करें तो राउटर आईडी वहां पर है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन हो जाती है. तो हाँ, दोनों के बीच में टू वे स्टेट हो गया है. और इसी स्टेट में डीआर और वीडीआर राउटर्स चुने जाते हैं. डीआर और वीडीआर राउटर क्या होते हैं हम उस पर आएंगे, बट हाँ ऐसा ध्यान रख लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन था डीआर वीडीआर मल्टीपल अपडेट्स का. किसी एक राउटर पर किसी एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा बार आए, ये होता है मल्टीपल अपडेट. किसी राउटर के पास मान लीजिए कि उसने रूट लर्न किया 10.0.0.0, जो कि हो सकता है किसी भी राउटर का हो, वही रूट अगर उसको 4 या 5 बार अपडेट मिल रहा है तो वो क्या होती है? मल्टीपल अपडेट होती है. सो मल्टीपल अपडेट को कम करने के लिए, टू रिड्यूस और टू एलिमिनेट, हमने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ स्पेस में, वो डीआर वीडीआर है. वो क्या है वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट अभी तक ये समझ लीजिए कि डीआर वीडीआर इज अ सॉल्यूशन. ओके, सो डीआर वीडीआर वाला सिलेक्शन भी टू वे स्टेट में हो जाता है. नेबरशिप अभी चल रही है, अभी तक नेबरशिप में कुछ और काम नहीं हुआ है, तीसरी स्टेज में पहुंचे हैं. अभी चौथी स्टेज क्या कहती है? चौथी स्टेज होती है एक्सटार्ट. एक्सटार्ट स्टेज क्या कहती है कि राउटर्स अब एक दूसरे को ना अपनी एलएसए
फॉरवर्ड करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब और यहाँ पर ये भी होता है कि सर कौन राउटर पहले अपडेट भेजेगा, जो पहले भेजेगा वो मास्टर है, कहने को समझ लीजिए। कोई पहले, फॉर एग्जांपल दो राउटर्स है, दोनों ने मेंटरशिप चल रही है, एक राउटर ने बोला भैया पहले तो मैं भेजूंगा, ऐसा कैसे सर, वहां पर इस चीज का होता है कि जो मास्टर राउटर कौन सा है वो डिपेंड करता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, जो मास्टर राउटर होगा वो पहले अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो वो यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि कौन एक्शन शुरू करेगा। एक्सटार्ट स्टेट में राउटर अपने LSI लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं जो कि उन्हें आगे फॉरवर्ड करनी है, और मास्टर स्लेव का सिलेक्शन भी हो जाता है कि कौन सा राउटर पहले एक्सचेंज शुरू करेगा। पांचवी जो स्टेट है वो है एक्सचेंज, एक्सचेंज होना शुरू होगा। अब राउटर आर एक्सचेंजिंग डेटाबेस, LSA डेटाबेस बेसिकली, है ना, तो इसके अंदर टोपोलॉजी डेटाबेस जो हमारा होता है, राउटर अब वो इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिए, राउटर विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू दी अदर राउटर। अब होता क्या है, पांचवी स्टेट में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, नेक्स्ट स्टेट आती है लोडिंग, और लोडिंग स्टेट में क्या होता है, लोडिंग स्टेट में हम लोग कहते हैं कि सर अब हमारे राउटर में ना फुल्ली फाइनली कंप्लीट हो चुका है, एक्सचेंज हो चुकी है सारी लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक्सेंशियली चली गई हैं, हमने शेयर कर दिया है एक दूसरे से। और जब हम शेयर कर देंगे, जब हमारा कंप्लीट लोडिंग प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में जो हमारी स्टेट निकल के आती है वो होती है फुल, मतलब सेवंथ स्टेट हमारी कैसी होती है, फुल। और जब मेरा नेटवर्क मेरा राउटर के साथ दूसरे राउटर से मेरी नेटवर्क अगर फुल पर आ गई है, इसका मतलब हो गया कि सर अब मेरे राउटर्स एक दूसरे से कंप्लीटली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली अपनी LSA इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, पकड़ा चुके हैं। अब बात करें कि सर अब जैसे हमारा पड़ोसी है, उसका रोल क्या है मेरी टोपोलॉजी में, उसका रोल क्या है मेरे एरिया में, उसके अकॉर्डिंग ना जो नेबरशिप जो बनती है वो फुल भी ना अलग अलग टाइप से होता है। फुल अलग अलग टाइप से कैसे होता है वो देखिए, मैंने बोला जी सब फुल में क्या क्या होता है, एक तो होता है फुल Sir? Sir? यस, The number 7 full. It's not clear. सॉरी, Number 7 full. Can you repeat it? सॉरी अला, आई डिडंट गेट यू। Yeah, number 7 full. Full. I'll not get it. Okay, Can you full repeat it? state. Okay, no problem. Remember, the fifth stage is exchange state, or exchange state means the router will exchange the information, will start to exchange the information. And in the sixth stage, that is loading state, in which the complete exchanging will finally done in loading state. When we come to the full state, that indicate that the router will completely exchange their information. Now no further information is going to exchange. The initial exchange process has been completed. That is indicates in seventh full state. Full state indicate that router are fully synchronized basically, and the topology table of all router should be identical. Remember this thing. Full state will say that now my router is in convergence state. That means all the routers topology table are same, because topology table will contain the all possible routes, the all available routes in my topology. So definitely, if all router contain all the routes in their topology table, that state particularly, that particular state is known as full state. Now, the full state is basically depend on the role of neighbor router. Role means the neighbor router could be a DR, could be a BDR, or could be a DR other. Okay, it could be a DR BDR. What is DR BDR? Designated router, border backup designated router. So these are DR and BDR routers. So neighborship for DR BDR will be differ according to the role. अगर मेरा पड़ोसी राउटर DR है